Good morning, students. I hope you all are healthy and safe at your home. So, as we were discussing our chapter 6, that is Python fundamentals, and we have studied about the character set. What is character set? Then we discussed about the tokens, that it is a individual unit of your Python program, and after that we had discussed the different components of tokens, right? So we had discussed about the variables, literals, functions, expressions, strings and keywords. So all these things we have covered, like keywords, what are the keywords, what are the identifiers, and what are the rules for the identifiers. After that we had discussed literals, that what is literal, what is value, right? What is string literal. After that we had discussed escape sequence. Then we had discussed single line string, multiple line string. Okay, and we had discussed about the numeric literals. Okay, so in the numeric literals, I told you that we have three types of numeric literals. First is your integer type, second one is your float type, and the third one is complex type. And I gave some example of each and every numeric literals, right? So आज हम देखो, we have integer numeric literals, we have float type and we have complex. तो अब इंटीजर की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो न्यूमेरिक लिटरल्स थे. न्यूमेरिक लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स थे वो हमारे फर्स्ट वॉज इंटीजर टाइप, सेकेंड वॉज octal type, and the third one is your hexa. Means you can represent your numeric letters in three forms, that is integer, second one is octal, and the third one is hexadecimal. So first I have discussed in the last video, like integer or like 15, 20, right? It can be negative also, like 50 minus 10. Okay, so all these are what your integers, and we know that integers are of positive type and integer type. Now the second form is your octal type. सपोज आपको क्या करना है कि आप किसी वेरिएबल को octal वैल्यू असाइन करना चाहते हो. यू वांट टू असाइन octal वैल्यू टू अ वेरिएबल. For example, we have a equal to 10, but instead of assigning integer value to the variable a, you want to assign in the form of octal, right? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, octal को इस 10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, octal में. एंड वी नो दैट how we can convert a decimal number to the octal number. So now divide 10 by 8, because 8 is the base of octal. So 8 ones are 8, remainder is 2. Now 8, जब आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे you will get remainder 1. और हमें पता है हम बॉटम टू टॉप चाहते हैं, 1 and 2. ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन. अब आपको पाइथन में नो इन द पाइथन लैंग्वेज, आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऑक्टल नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए. अब देखिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन वो कैसे होगी. सबसे पहले आपको लिखना है 0, उसके बाद आपको लिखना है O, और फाइनली आपका जो नंबर आया है वो क्या है, 12, राइट. ये क्या है आपका, ये है 0, ये है स्मॉल ओ, और आप इसकी जगह पर यू कैन यूज कैपिटल O, राइट. बोथ आर वैलिड, एंड दिस इज योर
ऑक्टल नंबर, राइट। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अगर आपको अपने किसी वेरिएबल में ऑक्टल नंबर को असाइन करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? सो दिस इज द बेसिक, so this is the way how you can represent your octal number. Same way, if you want to assign a variable, some value to a variable in the hexadecimal form, for that we have, suppose we have 20, okay, and you want to assign this 20 in the form of hexadecimal. So first of all you have to convert it into the hexadecimal, and for that we have to divide it by 16 because 16 is the base of a hexadecimal number system. So you will divide 16 versus 16, you will get 4 as a remainder, and 16 into 0 you will get as a 1. And if you know that you always write from bottom to top, that is 14. That is, it is not a 14, it is 1 4. Okay, now 16. अब देखो इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सो 0 x एंड 14. सो ये हमारा क्या है? ये है 0. दिस इज योर स्मॉल x, or you can use capital X like this, and this is your hexadecimal नंबर. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया, राइट? तो ये है हमारा क्या? रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल एंड octal, right? So this is the way how you can represent a particular number in the form of octal and hexadecimal. Okay, after that we have Boolean literals. Now in the Boolean literals we have only two values, that is true and the second one is false. अब देखो, ट्रू को हम 1 भी बोल सकते हैं और फॉल्स को 0. इसको हम कई बार हाई भी बोलते हैं एंड समटाइम्स वी कॉल इट लो. ओके, सपोज we have a variable that is, and we have assigned true. Okay, so we can assign two value to a variable that is a, and you can assign like false also. Okay, so this is your Boolean data type, or you can say that it is a Boolean variable. Now, and the last topic of your token is non-literals. Now what is the meaning of non-literals? Non-literals is nothing, it shows that there is no information, right? For example, अगर आप लिखते हैं a none, it means what? we have not stored anything to the variable a. Okay, अब जैसे जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, when you will print the value of a, so output will be none. Okay, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल n होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. आपको पता है we have a print function. ठीक है, it is used to print something.
ठीक है। अगर आपको कुछ वैल्यू को प्रिंट करना है, तो एट दैट टाइम वी यूज प्रिंट फंक्शन। सपोज वी हैव a इक्वल टू 10, नाउ b इक्वल टू में मैंने लिखा प्रिंट a एंड फाइनली हैव रिटर्न प्रिंट a। तो देखो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 10 एंड लास्ट में होगा नन। अब देखो ये जो 10 है ना, ये किसका रिजल्ट है, ये जो 10 है ये किसका रिजल्ट आया है, जो आपने प्रिंट लिखा है। ठीक है। अब ये जो आपने प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट ए, सो इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 10। तो ये नन क्या है, ये नन किसकी वैल्यू है। तो देखिए हमें पता है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रिंट समथिंग। बट आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दैट इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। इट मीन्स वॉट, इट रिटर्न्स नन वैल्यू टू द कंपाइलर। ठीक है। तो आप देखिए जब इस प्रिंट फंक्शन को कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो वो रिजल्ट देगा 10। ओके, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन कंपाइलर विल रिटर्न नन, दैट इज NONE, none, and it will get stored to the b variable and here you are printing the value of b। तो देखिए आपने b के अंदर क्या किया, नन किया, सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग नन। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नन लिटरल्स। ओके, नाउ सपोज दिस इज योर पाइथन इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, आपने लिखा a इक्वल टू में 10, नाउ प्रिंट, फिर आपने लिखा b इक्वल टू में प्रिंट a। ओके, आपको ये 10 प्रिंट हुआ, लेकिन अब जब आप प्रिंट करेंगे b की वैल्यू को, दैट इज b, तो देखिए क्या होगा, नन होगा ना। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड दैट्स वाई b वेरिएबल डज नॉट स्टोर एनी वैल्यू। ओके, तो देखिए जब इस प्रिंट ने प्रिंट किया a की वैल्यू को, दैट इज 10, और फिर रिटर्न किया नथिंग टू द वेरिएबल b। अब b के अंदर कुछ हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग नन हेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नन लिटरल्स का क्या यूज़ है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा बुलियन लिटरल्स एंड नन लिटरल्स। ठीक है, तो अब हमारा जो टोकन वाला जो पोर्शन है, जो हमारा टोकन वाला पोर्शन है, इट इज़ नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, जो टोकन वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। टोकन्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये सब था हमारे टोकन्स का पार्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स को मैं ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर के अंदर नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि चैप्टर 7 के अंदर हम ऑपरेटर्स को अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो है वो आप बुक में से पढ़ लेना, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम ऑपरेटर्स को काफ़ी डिटेल के अंदर चैप्टर 7 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे that what is the basic structure of your Python program and what are the components available in your Python program. Okay, thank you.